Yeah, hi guys, good morning. I hope आप लोगों को स्क्रीन दिखाई दे रही है. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So can we start? Yes. All right. तो अभी क्वेश्चन नंबर 1 का जो है अपने पास, what is question number 1? Question number 1 clearly states compared to osmotic pressure of 0.1 molar urea, what will be the osmotic pressure of 0.01 molar KCl? Okay, assuming 100% dissociation. So abhi osmotic pressure is a colligative property, and we know that colligative property depends upon the number of particles. तो अब number of particles कैसे calculate करते हैं वो मैं आपको बता दूं यहाँ पे. So number of particles is calculated by concentration and हर mole, एक molecule जो है वो कितने particles आपको दे सकता है. तो अभी यूरिया देखो, यूरिया का concentration है 0.1 molar, okay, and उसका यूरिया बीइंग अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट वो आपको एक ही पार्टिकल दे सकता है. तो 0.1 into 1 is 0.1. ओके, तो यूरिया का हो गया 0.1 एंड KCl का कॉन्सेंट्रेशन है 0.01 और वो आपको दे सकता है दो पार्टिकल्स, क्योंकि K और प्लस और Cl माइनस दो पार्टिकल्स हो जाएंगे, जिसकी वजह से द फॉर्मूला द वैल्यू विल बी 0.02. ओके, आई होप यू गाइस कैन सी दिस. ओके, एक का 0.01 है, दूसरे का 0.02 है. तो सिर्फ इतना पूछा व्हाट इज द रेशियो. तो द रेशियो इज 1:5. ओके, वंस अगेन कैसे कैलकुलेट करना है, कांस्टेंट आप लिख लीजिए चाहिए तो. टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज कैलकुलेटेड एज concentration multiplied by total number of particles is concentration multiplied by number of particles given by one molecule. Okay, concentration multiplied by number of particles given by one molecule is your total number of particles. Okay. Now the next question, that is question number 2. Just give me a moment. Sorry. The next question, that is question number 2. Osmotic pressure of equimolar solutions following solutes आपको कितना रहेगा? Which of these show minimum osmotic pressure? Now when I say minimum osmotic pressure, I once again the same concept that osmotic pressure is a colligative property. बराबर है, colligative property है तो किसका वैल्यू मिनिमम रहेगा? ऑब्वियसली उसका जिसके नंबर ऑफ पार्टिकल सबसे कम है. बराबर है. मिनिमम पूछा है या मैक्सिमम पूछा है? Which of these will show the minimum osmotic pressure? Okay, so minimum osmotic pressure के लिए ये रहा अपने पास number of particles. ये मेरा थोड़ा सा यहाँ पे मैंने गलत किया है in this particular question. If you see, मैंने maximum लिखा है but we need minimum. So maximum osmotic pressure के लिए maximum particles है, वैसे ही minimum osmotic pressure के लिए minimum particles होंगे. Number of particles minimum कैसे निकाला था? ये रहा देखो, चारों का मैंने निकाल के दिखाया है. You select which one is suitable for you. We want the lowest number of particles. तो Mg एक देगा और Cl2 दो देगा, तो टोटल 3 हो गए यहाँ पे. बराबर है. Then we have KCl. KCl कितना दे रहा है अपने को? 2. K प्लस और Cl माइनस. NH3 3 हो गए, NH4 के 3 और PO4 का 1 मिला के ये हो गए 4. अपने को लोएस्ट चाहिए and therefore our answer is sucrose, which is just 1 because sucrose is a non-electrolyte. Okay, so these are the first two questions. Please write this down.
यहाँ पे सिर्फ मिस्टेक है, मैंने मैक्सिमम लिखा है जबकि क्वेश्चन में मिनिमम पूछा है, तो वी वांट द लोएस्ट नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड नॉट द हाईएस्ट नंबर ऑफ पार्टिकल्स. ओके. Going to question number 3. The normality of 2% H2SO4 weight by volume is nearly how much? Okay, so 2% H2SO4 weight by volume कैसे calculate करेंगे? Weight by volume 2% is also nothing but 2 grams in 100 ml. You can see here मैंने लिखा हुआ है already 2 grams in 100 ml. Just give me a moment. Let me take these off. Okay. 2 grams in 100 ml. ये लिखा हुआ है यहाँ पे देखो. It is weight by volume. तो अभी मैंने क्या किया, नॉर्मेलिटी पूछा है, तो नॉर्मेलिटी के लिए पहले हमको मोलारिटी ढूंढनी पड़ेगी. मोलारिटी इज कैलकुलेटेड एज मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम. तो देखो नंबर ऑफ मोल्स कैसे आ गया, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट. वेट इज 2 grams and molecular weight of H2SO4 is 98. In how many liters? 100 ml. 100 ml कितना होता है? 0.1 लीटर होता है. बराबर है. तो मोलारिटी देखो मैंने कैसे किया है, वेट, ये देखो नंबर ऑफ मोल्स निकाला है यहाँ पे, 2/98 इज नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम. ओके, सो अपना कितना हो जाता है फिर, ये रहा, दैट इज द नंबर ऑफ मोल्स 20/98. एंड नॉर्मेलिटी इज, if you remember the formula, normality is molarity multiplied by H plus OH minus oxidation state और valency. अब H2SO4 है, अपने को मालूम है H2SO4 2 H plus दे सकता है, तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला हो जाएगा मोलारिटी मल्टीप्लाइड बाई 2. मोलारिटी ऊपर था देखो 20/98 एंड मल्टीप्लाइड बाई 2. उसको मैंने सॉल्व किया तो आई गेट 20/49 विच इज इक्वल टू 0.4 normal. The unit will be capital N. Once again, starting from the red part to the green part, 2% H2SO4 is 2 grams H2SO4 in 100 ml. बराबर है. Moles of H2SO4 is weight upon molecular weight in 100 ml. 100 ml कितना हो रहा है, 0.1 लीटर हो रहा है. बराबर है. सो मोलारिटी कैसे निकाला, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट करके एंड डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम. सो 2/98 डिवाइडेड बाय 0.1 which comes down to 20/98. Okay. Normality is molarity multiplied by number of H plus given by the acid, number of OH minus given by the base, and oxidation state और valency. तो सब मल्टीप्लाई किया 20/98 into 2, तो अपने को मिलता है 20/49 which is 0.4. So answer is 0.4 normal. Okay. Sorry, I'm trying to learn this. I'm not sure how it will be. Okay. Going to the next question. Question number 4. Which of the, an aqueous solution of urea containing 6 grams in 500 ml has a density equal to 1.05. If the molar mass of urea is 60, then the molality. Okay, अभी ये देखो, ये ऐसा एक क्वेश्चन अपने स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड के टेक्स्ट बुक में भी था. ओके, डेंसिटी दिया है, वॉल्यूम दिया है और 6 grams of urea. Now if you know urea is your solute, तो सोल्यूट का वैल्यू W2. ठीक है, अभी देखो मैंने कैसे लिखा है यहाँ पे. ओके, सी दिस इज आवर W2. बराबर है 6 grams ऑफ यूरिया. कितना वॉल्यूम है, 500 ml में, और डेंसिटी कितनी है, 1.05. तो देखो टोटल वेट ऑफ द सॉल्यूशन क्या रहेगा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी.
But do you agree that total weight is W1 plus W2? बराबर है weight of the solute plus weight of the solvent. तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी के तो कितना है 525, लेकिन उसमें 6 ग्राम तो यूरिया का है, तो W1 का वैल्यू कितना आएगा इस तरह 519 ग्राम्स है, तो 3 पॉइंट पीछे करेंगे बिकॉज किलोग्राम्स में चाहिए, तो 0.52 kg हो गया अपना काम. मोलालिटी इज, फॉर्मूला देखो मोलालिटी का क्या लिखा है मैंने. मोलालिटी का फॉर्मूला इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ द सॉल्वेंट इन kg. हाउ डू यू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स? ये रहा W2 अपॉन M2 इंटू W1. W2 कितना है 6 ग्राम. मॉलिक्यूलर वेट कितना है क्वेश्चन में दिया है, और अगर नहीं भी दिया हो तो यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट 60 है, ये सबको पता रहना चाहिए. और ये रहा आपका W1 जो मैंने ऊपर से निकाला है 0.52 kg. सो वंस आई सॉल्व दिस माय आंसर विल बी 0.193 और 0.192. वंस अगेन देखो क्या करना है ऐसे क्वेश्चंस में, जब भी डेंसिटी वॉल्यूम दिया है तो टोटल वजन निकालने का, और उसमें से सोल्यूट का वजन माइनस करने का, तो अपने को सॉल्वेंट का वजन मिलेगा. ओके देखो डेंसिटी और वॉल्यूम दिए थे, अपन ने टोटल वजन निकाला और उसमें से 6 ग्राम माइनस किया, सॉरी उसमें से 6 ग्राम माइनस किया, तो अपने को वेट ऑफ द सॉल्वेंट मिला. वंस आई गेट द वेट ऑफ द सॉल्वेंट, मोलालिटी का फॉर्मूला डाल दिया मैंने, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट अपॉन टोटल वेट ऑफ द सॉल्वेंट इन kg. फॉर्मूला डाला एंड आई गेट दिस आंसर एज 0.192. आई वांट यू गाइस टू ट्राई सॉल्विंग दिस. प्लीज ये लिखो और ये जो नीचे का फ्रैक्शन है वो एक बार खुद से सॉल्व करो प्लीज. Okay, moving on to question number 5. Which of these has the highest freezing point? See, now this is a trick question. ये उल्टा क्वेश्चन है, हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट. अब मुझे ये बताओ, इन अगर मैं ये नंबर्स बोलता हूँ चार, आप खुद ही सोच सकते हैं, ये चार नंबर्स है -1 -2 -3 -4. तो ये चारों में से हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट कौन सा है, -1 या -4? -1 हाईएस्ट है, बराबर है. तो 0 से अगर -1 हम जा रहे हैं तो दैट इज द लोएस्ट डिफरेंस ना. फ्रीजिंग पॉइंट हाईएस्ट पूछा है तो डिफरेंस लोएस्ट होना चाहिए. यहाँ पे -1 अपना हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट होना चाहिए था, बराबर है. तो हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट के लिए वैल्यू लोएस्ट डेल्टा टीएफ की होनी चाहिए. लोएस्ट डेल्टा टीएफ इज लोएस्ट नंबर ऑफ पार्टिकल्स. तो अभी इनमें से कौन है जो अपने को लोएस्ट नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे सकता है? जैसे मैंने डिस्कस किया आपके साथ थोड़ी देर पहले, पार्टिकल्स इज कैलकुलेटेड एज concentration multiplied by the number of particles given by one molecule. So K4 है इधर देखो, एक K4 देगा अपने को और ये पूरा ब्रैकेट अपने को 1 देगा, तो 4 + 1 is 5. We are getting 5 particles here. Glucose being a non-electrolyte, it will give us only 1. KCl क्या करेगा, 1 + 1 2, and NaCl क्या करेगा, again 1 + 1 2.
तो किसने अपने को लोएस्ट नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए? ऑब्वियसली द आंसर इन दिस क्वेश्चन इज ग्लूकोज, क्योंकि वो अपने को सिर्फ एक ही पार्टिकल दे रहा है, जिसकी वजह से उसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सबसे कम होगी, जिसकी वजह से उसका फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। ओके, सो आई पुट इट दिस वे, गिव मी मोमेंट। ये पूरा आंसर है यहाँ पे, अभी देख लो क्या किया हम लोग ने। पहले हम लोग ने कॉन्सेप्ट यूज किया दैट हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट चाहिए तो लोएस्ट डेल्टा टीएफ होना चाहिए। ओके, दैट इज -1 अपने को चाहिए ना, तो वी विल हैव टू गो फॉर द वन व्हिच हैज द लोएस्ट नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो K4FeN पूरा एक स्क्वायर ब्रैकेट एक आयन है और K के 4 आयन है, तो टोटल 4 + 1 5। ग्लूकोज का सिर्फ एक, और KCl और NaCl आपको 1 + 1 2 दे सकते हैं। तो आवर आंसर इज ग्लूकोज, जो अपने को सिर्फ एक ही पार्टिकल दे रहा है। ओके, next question, question number 6. How many grams of a dibasic acid should be present in 100 ml to give a decinormal? Decinormal means deci is 1/10, बराबर है, अपने को 1/10 चाहिए। 1 mole और 1 gram per equivalent upon 10 liters. So how will we solve this? तो पहले है ना, अपन डायरेक्टली कभी नॉर्मेलिटी सॉल्व नहीं करने का, पहले मोलैरिटी सॉल्व करने का। ओके, देखो मैंने कैसे किया है यहाँ पे। मॉलिक्यूलर वेट दिया है 200, ओके, वॉल्यूम दिया है 100 ml। 100 ml मतलब कितना हो गया? 0.1 लीटर। बेसिसिटी 2 दिया है, बोला है डाई बेसिक एसिड है, बराबर है, मतलब वही 2 H+ होंगे, उसके बाद H2SO4 कुड बी अ कॉमन एग्जाम्पल। नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाई 2। ये फॉर्मूला हम एक बार पहले भी देख चुके हैं, अभी थोड़ी देर पहले ही एक सम सॉल्व किया था, उसमें था। ऑलराइट, नाउ व्हाट इज नॉर्मेलिटी? मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाई 2। मोलैरिटी ये रहा, moles upon volume. How do you calculate moles? Weight upon molecular weight. पर अपने को क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि वी नीड अ डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन, इसलिए नॉर्मेलिटी का वैल्यू देखो मैंने 0.1 ले लिया, वॉल्यूम भी देखो 0.1 ले लिया क्योंकि ऊपर है, 2 भी ले लिया है क्योंकि बेसिसिटी है। तो अपने पास सब कुछ है ना, अपने को सिर्फ W2 चाहिए, क्योंकि M2 का वैल्यू भी दे दिया 200, सॉरी तेरा M2 का वैल्यू भी दे दिया 200, वॉल्यूम भी गिवन है, सब गिवन है, सिर्फ W2 ढूंढना है। तो सॉल्व किया, अपने को आंसर आ जाएगा W1 as 1 ग्राम। वंस अगेन देखो, मॉलिक्यूलर वेट दिया था, ओके, मॉलिक्यूलर वेट दिया था, वॉल्यूम दिया था, और बेसिसिटी दी थी, और नॉर्मेलिटी दी थी, बराबर है। ये इतना इंफॉर्मेशन अपने को दिया हुआ है। अपने को पूछा है अगर 0.1 नॉर्मल सॉल्यूशन बनाना है तो कितना ग्राम सॉल्यूट डालना पड़ेगा। तो आवर स्टैंडर्ड फॉर्मूला वाज नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ H+, नंबर ऑफ OH-, ऑक्सीडेशन स्टेट और वैलेंसी। तो अपना आ गया 2, बिकॉज बेसिसिटी 2 है। व्हाट इज मोलैरिटी? मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। मोल्स के लिए क्या फॉर्मूला यूज कर दिया? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। सिर्फ W2 अननोन है, बाकी दुनिया भर की चीजें अपने को दी गई है, सिर्फ सब्स्टिट्यूट करो, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा एज 1 ग्राम। ओके, सो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 6, आई थिंक। Yeah, let's go to question number 7. Which of the following pairs can we expect to be isotonic? Isotonic मतलब क्या? Same osmotic pressure. Isotonic means same osmotic pressure. देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, isotonic is same osmotic pressure. अभी osmotic pressure क्या है? Colligative property. तो colligative property में number of particles same होने मांगते हैं, बराबर है। So osmotic pressure being a colligative property, isotonic चाहिए, and तो same number of particles होने चाहिए। वही किया है हम लोग ने। देखो अब
सबके कॉन्सेंट्रेशन सेम है, इसलिए मैं उनके साथ नहीं खेल रहा, मैं सिर्फ उनके नंबर ऑफ पार्टिकल्स के साथ खेल रहा हूँ। क्या मुझे वो लोग सेम पार्टिकल्स दे सकते हैं? तो देखो ये रहा, यूरिया will give me only one particle, but NaCl will give me two, so they are not equal. Urea will give me one, but MgCl2 will give me three, they are not equal. NaCl मुझे दो देगा, Na2 उधर ही दो होगा और SO4 एक देगा, तो 2 + 1 3 हो जाते हैं। बट यहाँ पे प्लीज करेक्ट इन योर क्वेश्चन पेपर, आई थिंक क्वेश्चन पेपर में यहाँ पे 0.12 दिया गया है, जबकि इट इज ऑल्सो 0.1। ओके, तो अभी यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं देख लेते हैं। कैल्शियम का एक और नाइट्रो के तीन, NO3 के दो, सॉरी कैल्शियम का एक और NO3 के दो, एक और दो कितने हो गए? तीन। यहाँ पे क्या, सोडियम का दो और सल्फेट का एक, 2 + 1 कितना हो गया? 3। तो ये दोनों क्या हो रहे हैं आपको, नंबर ऑफ पार्टिकल्स सेम दे रहे हैं, बराबर है। दे आर गिविंग यू द सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड देयरफॉर दे विल बी having the same osmotic pressure which we call as isotonic. Once again, isotonic मतलब same osmotic pressure। अभी osmotic pressure कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी सेम होने चाहिए। बस हम लोग ने सिर्फ देख लिया किसके नंबर ऑफ पार्टिकल सेम है, अपना आंसर आ गया डी। ऑलराइट, देख लो एक बार प्लीज। Okay, moving on to question number 8. Assuming 100% ionization, the increasing order of freezing point of the solution will be. See, very clear question, increasing order। अभी मैं थोड़ा सा पीछे जाता हूँ, एक क्वेश्चन जो हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस किया, ये रहा। अब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इज हाउ, -3 से -2 से -1, बराबर है। तो हायर नंबर ऑफ पार्टिकल्स say lower number of particles, this is the highest one, right? This is अपना number 1, this is first, this is second and this is third, बराबर है। so इधर 1 पहले आएगा, highest number of particles to lowest number of particles अपने को जाना है, बराबर है। so we'll try to go to question number 8 now। क्लियरली लिखा है देखो, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट मतलब वही -3 से -2 से -1 and therefore our thought has to be in this way, decreasing number of particles। तो अपना जो ऑप्शन ए है उसी को आप देख लो, मेरा आंसर उधर ही आ गया इसलिए मैं नीचे तक नहीं गया। ऑप्शन ए में देखो, पहला पार्टिकल क्या है, Ba3 PO4 ट्वाइस, तो उधर आपको 5 पार्टिकल मिल गए। फिर Na2SO4 हो गए आपके 3 पार्टिकल, और फिर KCl हो गए आपके 2 पार्टिकल। तो हो गया ना 5 to 3 to 2, 5 से 3 से 2 is already decreasing number of particles। okay, I think I made a mistake here, okay, please correct it। this is 3 plus 2, this has to be 5 here। okay, so it is 5 3 2 एंड ये भी मिस्टेक है मेरी बहुत घटिया सी, मेरे को शायद नींद में था मैं, जैसे आप अभी हो। ओके, क्या करेक्शन करना है, पहले तो यहाँ पे 2 करना है, तो ये 5 हो जाएगा, और ये ग्रेटर के साइन चेंज करने। ओके, तो प्लीज उतना ध्यान रखना। 5 is greater than 3 is greater than 2। ओके, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट विल बी 5 का कम रहेगा, सबसे छोटा फ्रीजिंग पॉइंट 5 का रहेगा, फिर 3 का रहेगा, फिर 2 का रहेगा। सो दैट्स decreasing number of particles, increasing order of freezing point। okay, please correct it and note it down।
क्वेश्चन नंबर 9, एन इलेक्ट्रोलाइट गिव्स 3 आयॉन्स। देखो अभी ए के 3 आयॉन्स है एंड बी इज अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट, तो सीधा सीधा हिसाब है, बी के पास एक पार्टिकल है और ए के पास 3 पार्टिकल है। अपने को पता चल जाना चाहिए कि जो भी ए का वैल्यू होगा वो 3 गुना ज्यादा होगा, बस उतना ही अपना काम है। ओके देखो बहुत क्लियरली बोला है, 0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ बी प्रोड्यूसेस पी, then 0.05 molar of A will produce how much? ओके तो अभी देखो कॉन्सेंट्रेशन दोनों के अलग अलग है, तो अपने को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिकॉज वी हैव डन सम लाइक दिस बिफोर। कैसे किया था? एनी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी will be calculated as number of particles, और number of particles कैसे कैलकुलेट करते हैं? concentration multiplied by number of particles। तो देखो B का concentration 0.1 है, number of particles 1 है, तो उसका वैल्यू 0.1 आया। ए का कॉन्सेंट्रेशन 0.05 है, उसके 3 पार्टिकल्स है, तो उसका वैल्यू 0.15 आया, बराबर है। अब यहाँ पे इस तरह, तो अगर बी का वैल्यू पी है विच इज 0.1 के हिसाब से, इसका 15 है, तो आंसर विल बी 1.5 पी। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, देयर इज नॉट मच रॉकेट साइंस इन्वॉल्वड हियर। ओके ये यहाँ आपके सामने कैसे कैलकुलेट किया, कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ओके तो इफ दिस कैन गिव यू p, इसका 1.5 गुना हो जाएगा विच इज 1.5 p। ऑलराइट, प्लीज राइट दिस डाउन। सोनू मौर्य, दानू, प्लीज तेरा माइक बंद कर अगर कुछ काम नहीं है तो। थैंक यू बेटा। एनीवन विद एनी क्वेश्चंस इन दिस? टोटल अभी जो भी 8-10 किए हम लोग ने, दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। एनीवन विद एनी डिफिकल्टी इन एनी ऑफ these 9 questions, please ask. Explain question number 9 again. हाँ ओके, सी क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, आपको सिंपल सिंपल चीजें पूछी है कि अगर B का ऑस्मोटिक प्रेशर P है तो A का कितना रहेगा, सिर्फ उतना पूछा है। बट दोनों में फर्क इतना है कि दोनों का कॉन्सेंट्रेशन भी अलग है और दोनों के नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी अलग है, तो हमने कैसे कैलकुलेट करना है, टोटल पार्टिकल्स देखना है। तो देखो B के लिए बोला गया है दैट कॉन्सेंट्रेशन वाज, B के लिए कॉन्सेंट्रेशन कितना था 0.1, और नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो कितने पार्टिकल्स हो गए 1, इससे मैंने उसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो B का वैल्यू 0.1 आ गया। वैसे ही ए के लिए कॉन्सेंट्रेशन था 0.05 और पार्टिकल्स है 3, ऐसा बोला गया कि 3 आयॉन्स में वो डिसोसिएट हो रहा है, देखो ऊपर लिखा भी है, तो उसका वैल्यू आ जाता है 0.15। तो बस ये रेशियो ढूंढना है, 0.1 अपॉन 0.15 इज 1.5 का रेशियो, कि अगर इसका वैल्यू p है तो इसका 1.5 p रहेगा। सिंपल सा सिर्फ रेशियो ढूंढना था बस, और कुछ नहीं। Thank you, sir. Okay, yeah. Anybody else from question number 1 to 9? Sir, question number 7. क्वेश्चन नंबर 7, हाँ ये रहा। सी आइसोटोनिक बोला है, आइसोटोनिक मतलब सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। अभी ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, इसलिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सेम होने के लिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी सेम होने चाहिए। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैसे ढूंढने मैंने, बस उनके वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके, कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ आयॉन्स। अब यूरिया है, कॉन्सेंट्रेशन 0.1 है, यूरिया नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो वो एक ही पार्टिकल देगा, जबकि NaCl आपको Na प्लस और Cl माइनस 2 पार्टिकल देंगे। फिर से यूरिया MgCl2, फिर NaCl और Na के 2, SO4 का 1,
तो 2 और 1 3 हो गए। और फिर यहाँ पर Ca का एक, नाइट NO3 के 2, 1 + 2 3, और इधर Na सोडियम के 2 और SO4 का 1, 2 + 1 3। ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स इक्वल है, इसलिए उनकी ऑस्मोटिक प्रेशर भी सेम होगी, क्योंकि आइसोटोनिक वर्ड यूज किया है। आइसोटोनिक मींस सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। जो आपका क्वेश्चन पेपर है उसमें डी ऑप्शन में मिस्टेक है। Na2SO4 के कॉन्सेंट्रेशन के आगे 0.12 लिखा गया है, इट इज 0.1। वो करेक्शन कर दीजिए। सर क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट बताना एक बार प्लीज। See, this is the correction that I was talking about। यहाँ पर सॉरी, ये वाला, इसमें करेक्शन देख लीजिए। 0.12 लिखा है जबकि इट इज 0.1, making the number of particles 3 in both the cases, and therefore they will be isotonic in nature। Okay, question number 10। The density of a 2.05 molar solution of acetic acid in water is 1.02 grams per ml. Molality is how much? Now I want you guys to go for this question। This is very similar to question number 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 से ज्यादा इजी है ये सर, क्यों पता है? क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 में वजन दिया था। देखो ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 4 भी ऊपर ही है, अगर आपको दिख रहा हो स्क्रीन पे तो। कि देखो वजन दिया था, वजन, फिर उसको हमने नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट किया था बाय यूजिंग दिस मॉलिक्यूलर वेट। बट इन दिस क्वेश्चन बेस्ट है ना, सीधा मोलार दे दिया है, नंबर ऑफ मोल्स दे दिया है। ओके, नंबर ऑफ मोल्स दे दिया है, आपको सिर्फ उसका मोलालिटी ढूंढना है, मतलब W1 ढूंढना है, और 2.05 ऊपर आ जाएगा। तो प्लीज ट्राई सॉल्विंग दिस, लेट मी सी व्हाट यू गाइस गेट। ट्राई सॉल्विंग दिस ऑन योर ओन। Refer to question number 4। मेरे सॉल्यूशन में भी वही लिखा है, तो आपको एज सच तो कोई इधर से मिलने वाला है नहीं। अच्छा, मैंने 9 के बाद सीधा 11 12 लिखा है, क्योंकि 10 में लिखा था सेम एज क्वेश्चन नंबर 4। So please solve this question number 4 by yourself. Sorry, question number 10 by yourself right now। So who will answer this question for me? Let me check।
साक्षी मिस्त्री, पालघर। Doing. हाँ बेटा जल्दी, इजी है, जल्दी करो। Option B. क्या बेटा? Option B. ऑप्शन बी 2.28। हाँ. यस करेक्ट है। Guys, please try fast. आंसर इज बी। मेरे पास कैलकुलेशन नहीं है, डू नॉट एक्सपेक्ट, खुद से ट्राई करो। मल्टीप्लाई योर डेंसिटी एंड द वॉल्यूम। Okay, your answer should be B, 2.28. Sir, answer is option B, 2.28 mole per kg inverse. Yes, very good. The answer is B, correct. Nice. चलो फिर क्वेश्चन नंबर 11 पे जाते हैं। An aqueous solution freezes at minus 0.186. अरे यार ये क्या हो जाता है घड़ी घड़ी। एक मिनट है भाई लोग। aqueous solution freezes at 0.186 माइनस में। Okay, what is the elevation in boiling point? See, frankly, I would not even solve this question. मैं ये क्वेश्चन रीड करते ही मुझे आंसर आ जाएगा क्या सर क्यों। देखो, इफ यू रिमेम्बर डेल्टा टीबी और डेल्टा टीएफ का फॉर्मूला सेम बैठता है। तो अगर ये रहा देखो, केएफ का वैल्यू 1.86 है तो टीएफ का वैल्यू माइनस 0.186 है, मतलब सिर्फ एक डेसिमल शिफ्ट हुआ ना पीछे, 1.86 का एक डेसिमल पीछे गया। तो सिमिलरली देखो ये रहा, जिनको दिख रहा है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं दिख रहा है ये देखो, केएफ का वैल्यू 1.86 है तो इसका माइनस 1.86 है, सिर्फ एक डेसिमल पीछे शिफ्ट हो रहा है। तो सिमिलरली यहाँ पर केबी का वैल्यू 0.512 है, एक डेसिमल और पीछे शिफ्ट करूंगा तो क्या आंसर आ जाएगा? 0.015. Exactly. 0.0512. Perfect. Option D. Perfect. The answer is D. Yes. Option B. समझा? सिर्फ डेसिमल पीछे शिफ्ट करना है, पूरा सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि फॉर्मूले दोनों के सेम है। सिर्फ जहाँ पे केएफ था वहाँ पे केबी आ गया, इसलिए इसका एक डेसिमल पीछे शिफ्ट किया तो इसका भी एक डेसिमल अपने पीछे शिफ्ट करना है। Okay, so that's question number 11 for you. Going to question number 12. Question number 12 भी easy है, parts per million ढूंढना है। देखो जरा question number 12. 1 liter of water has 5 mg of magnesium or whatever it is. Calculate the ppm. तो how will I calculate the ppm? तो पहले तो देखो मैंने क्या किया, 5 mg वाटर 5 mg मैग्नीशियम को मैंने पहले ग्राम्स में कन्वर्ट कर लिया, दैट इज 5 into 10⁻³ 1 लीटर पानी मतलब 1000 ml, एंड वी नो दैट वाटर की डेंसिटी 1 होती है, तो जो ml होगा वही ग्राम होगा, मतलब 1000 ग्राम बराबर है। तो टोटल ग्राम्स इज 1000 and weight of the solute is 5 into 10⁻³। how do you calculate parts per million, ppm? पहले तो आपको सिर्फ याद दिला दूं,
परसेंट क्या था, वेट अपॉन टोटल वेट इंटू 100, बराबर है। परसेंट, सेंट मतलब 100 होता है, इसीलिए अपन मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं। यहाँ पे क्या है, पर मिलियन, इसलिए मल्टीप्लाई बाय मिलियन करना है। मैंने कुछ खास नहीं किया है, परसेंटेज का ही फॉर्मूला है ये, सिर्फ बिकॉज यहाँ पे पर मिलियन है इसलिए वो 100 के बदले 10⁶ रखा है बस। ओके, सो देखो वेट ऑफ द सोल्यूट इज 5 इंटू 10⁻³ बराबर, ये रहा। टोटल वेट ऑफ द सॉल्यूशन 1000 grams मल्टीप्लाइड बाय पर मिलियन मतलब 10⁶। तो इफ यू सॉल्व दिस you will simply get as 5 because सारे powers एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे। your answer is just 5। तो मैग्नीशियम का parts per million is 5 in water। please write this down। Okay, going to question number 13। now question number 13 is this कि 5 ml of 1 normal HCl, 20 ml of N/2 and 30 ml of N/3 are mixed together and the final volume is made up to 1 liter। now see officially these sums are calculated by one formula जो हम एक बार पहले लिख चुके हैं, मैं सिर्फ रिपीट कर रहा हूँ। ये रहा फॉर्मूला, देखो मोस्टली इट इज N1V1 plus N2V2 plus N3V3 divided by the total volume जो यूजुअली होता है V1 plus V2 plus V3। पर क्योंकि ये क्वेश्चन में बोला गया है that the final volume is made up to 1000 ml, तो इसलिए मैंने डिनोमिनेटर में 1000 लिया है, वरना यूजुअली मैं V1 plus V2 plus V3 लेता है। ऐसा बोलते हैं ना कि मिक्सचर का टोटल वैल्यू कितना है, तो नीचे V1 plus V2 plus V3 आता। पर क्योंकि क्वेश्चन में बोला है, स्पेसिफाई किया है that the final volume is 1000 ml, इसलिए मैंने डिवाइड बाय 1000 कर दिया है। ओके, सो फॉर्मूला रिमेन्स द सेम। देखो N1V1, व्हाट इज N, नॉर्मेलिटी 1, वहां पे 1 दिया था। वॉल्यूम कितना 5 ml, दूसरे का नॉर्मेलिटी 1/2, वॉल्यूम कितना 20 ml, तीसरे का नॉर्मेलिटी 1/3, वॉल्यूम कितना 30 ml, और टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कितना बनाया 1 लीटर विच इज 1000 ml। तो हो गया ना 5 इन प्लस 10 अपॉन 1000 is 25/1000 which is 1/40। तो योर आंसर इज N/40। ओके, वापस से रिपीट कर रहा हूँ। यूजुअली जब भी मिक्सचर आता है तो पूछा जाता है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द मिक्सचर कितना है, तो इट इज N1V1 plus N2V2 upon V1 plus V2। दैट इज अ स्टैंडर्ड फॉर्मूला। बट क्योंकि ये क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया है कि फाइनल वॉल्यूम मिला के 1000 ml किया गया है, दैट इज व्हाई आई हैव टेकन 1000 इन माय डिनोमिनेटर, वरना फिर मैं V1 plus V2 plus V3 लेता। ओके, प्लीज राइट दिस डाउन। दिस इज क्वेश्चन नंबर 13। If a few of you can answer this, मतलब answer in the sense it is not related to chemistry, कि are you finding this method convenient or do you find the whiteboard method convenient? What do you find better? Board. Whiteboard. Anybody else? Whiteboard or this? Or you can just type instead. Sir, board. The whiteboard. अच्छा, whiteboard method better पड़ The जाएगा। whiteboard. हाँ सर। बाद में तुम लोग घड़ी घड़ी उसमें बोलते हो स्क्रीन ब्लर हो गया, स्क्रीन गायब हो गया,
तुम गायब हो गए, वो बोर्ड मेरे पे 2 बार गिर चुका है, तो मैं सोचा कि ये वाला ट्राई करके देख सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट लेक्चर में वापस व्हाइट बोर्ड चालू कर देंगे। और ठीक है, थैंक यू फॉर योर सजेशंस। अभी आज का लेक्चर के साथ ही क्वेश्चन बचे, तो इधर से निपटा लेते हैं। इफ 100 ml of 1 molar NaOH, guys, question number 14 everyone. If 100 ml of 1 molar NaOH is diluted to 1 liter, बहुत सिंपल है। 100 ml of 1 molar NaOH is diluted to 1 liter. What is the resulting solution contains what? Okay, कुछ खास नहीं है। देखो इधर सॉल्व किया है, बहुत बचकान क्वेश्चन है। ये रहा 1 मोलर NaOH है, दैट मींस आइडियली 1 मोलर क्या होता है? 1 मोलर होता है 1 मोल इन 1000 ml। बट अपने पास 1000 ml है क्या? नहीं, अपने पास सिर्फ 100 ml है। तो इसका एक जीरो पीछे गया, तो इसका भी एक जीरो पीछे जाना चाहिए। तो टेक्निकली व्हाट डू वी हैव राइट नाउ? वी हैव 0.1 मोल प्रेजेंट विद अस इन हाउ मच ml? 100 ml। फिर बोला कि सिर्फ उसी को पानी से डाइल्यूट किया गया, मतलब वो 100 ml को पानी से डाइल्यूट किया गया टू 1000 ml। बट उस दौरान NaOH तो इंक्रीज नहीं होगा ना, क्योंकि अपन डाल तो सिर्फ पानी ही रहे हैं। तो योर फाइनल आंसर इज 0.1 मोल इन 1000 ml। आई जस्ट टेक दिस अगेन, इजी है बट थोड़ा सा दिमाग, हल्का सा लॉजिक लगाएंगे और कुछ नहीं। 1 मोलार है, थियोरेटिकली 1 molar is supposed to be 1 mole in 1000 ml. But do we have 1000 ml? No, we have only 100 ml. तो सर इसका डिवाइड बाई 10 हुआ, तो ये भी तो डिवाइड बाई 10 होना चाहिए। और फिर आपको बोला गया है कि सिर्फ पानी को, जो सॉल्यूशन है उसी को पानी डाल के डाइल्यूट किया है टू 1 लीटर। तो इसका नंबर ऑफ मोल्स तो चेंज नहीं होगा ना यार, ये तो उतना ही रहेगा, क्योंकि डाइल्यूट तो पानी किया है, NaOH थोड़ी डाला है। तो योर फाइनल आंसर इज 0.1 मोलर, that is 0.1 mole in 1000 ml. So please check that, confirm your answer from the options. The answer will be okay, ये हो गया हाँ, answer will be B, 0.1 mole of NaOH. Okay, question number 15. 0.6 grams of urea, that becomes your W2, weight of the solute. 100 grams of water, that becomes your W1, weight of the solvent. Kb आपको दिया गया है, what and normal boiling point of water भी आपको दिया गया है। आपको सिर्फ क्या पूछा है? what will be the new boiling point? clearly लिखा है, when 0.6 grams of urea is dissolved in 100 grams of water, it will boil at, म्हणजे नया बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा ये आपको ढूंढने का है। तो कैसे ढूंढेंगे? ये रहा, सिंपल फॉर्मूला डाला है मैंने, डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू 1000 केबी इंटू मोलालिटी। ओके, यू कैन जस्ट चेक योर केबी, डेल्टा टीबी का फॉर्मूला। ओके, मैं एक एक पॉइंट को हाईलाइट कर रहा हूँ यहाँ पे, आप चाह रहे हो तो क्रॉस चेक कर सकते हो। 1000 kb W2 M2 W1। ओके, तो 1000 हो गया, kb हो गया 52, W2 is 0.6, molecular weight of urea is 60 and weight of the water is 100। तो देखो 3 जीरो नीचे दिख रहे हैं मुझे 60 का और 100 के, तो वो 3 जीरोस को मैंने 1000 के साथ कैंसिल किया है। ओके, now I am left with 0.6 upon 6 which is 0.1 और बाजू में 52 है, तो my delta TB will be 0.052। उतना मेरा बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन हुआ, और स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट कितना था? 100 था, तो उतना ऐड करूंगा।
तो ऐड करके आ गया 100.052, उसको केल्विन में कन्वर्ट किया 273 ऐड करके, तो आंसर इज 373.052. ओके, वंस अगेन, व्हाट इज माय डेल्टा टीबी का फॉर्मूला? 1000 केबी W2 M2 W1. नीचे देखो 3 जीरो है, ऊपर के 3 जीरो के साथ कैंसिल, बचा क्या? 0.52, और इधर 0.6/6 कैन बी रिटन एज 0.1. तो फाइनल आंसर 0.052. We added to the original boiling point, which was 100, and convert the boiling point into Kelvin, which is 373.052. So that's your answer to question number 15. Question number 16. Which of the following solutions will have the lowest freezing point? This is the ulta of that particular question. ऐसा question हम कर चुके हैं. Highest freezing point था, इस बार lowest है. उस समय we went for lowest number of particles. This time we should go for highest number of particles. कहाँ गया वो question? 16 नंबर. Highest particles कौन देगा? इसी में देख के बता सकते हो क्या आप लोग? देखो कंपाउंड सेम है, NaCl, 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 NaCl चारों में, तो इट इज मोर अबाउट द कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि कॉमन फैक्टर 2 तो दोनों का रहेगा ही सबका. ये 0.1 बड़ा है, 0.01, 1 या दिए. ऑब्वियसली आंसर इज सी, 1 मोलर इज ग्रेटर देन ऑल द अदर 3. ओके, तो इसमें सॉल्व करने का भी जरूरत नहीं है. लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट चाहिए तो हाईएस्ट पार्टिकल्स होना चाहिए. अब चारों कंपाउंड सेम है, NaCl, therefore both all four will give 2 particles each. तो गेम किस पे आ गया? कॉन्सेंट्रेशन पे. जबकि अगर आपको याद हो तो मैं ये क्वेश्चन पे लेके जाना चाहूंगा फिर से आपको, क्वेश्चन नंबर 4 पे. क्वेश्चन नंबर 4 पे व्हाट डू यू नोटिस इज, देखो चारों के कॉन्सेंट्रेशन सेम थे, 1 मोलर, 1 मोलर, 1 मोलर एंड 1 मोलर. तो यहाँ पे गेम आ गया था नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे, जबकि क्वेश्चन नंबर 16 में गेम आ गया है कॉन्सेंट्रेशन पे, क्योंकि कंपाउंड सेम है. ओके, सो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 16. ऑलराइट, गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 17. बहुत ज्यादा बचकान क्वेश्चन है. अमाउंट ऑफ सोल्यूट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 10 लीटर ऑफ डेसिमोलर सॉल्यूशन. व्हाट इज डेसिमोलर? 1/10, और डिनोमिनेटर में ऑलरेडी 10 दे दिए लोग ने, तो आंसर में 1 ही होना वाला है. 1/10 करना है तो डेसिमोलर इज 1/10, और क्लियरली डिनोमिनेटर में 10 लीटर दे दिया है, तो ऊपर क्या बचेगा? 1 ही बचेगा ना. तो आंसर इज डी. ओके, 1 मोलर फॉर एवरी 10 liters is 1/10 decimolar. Question number 18. You don't need to solve this. This is a standard value. Please note this down. Please write this down. The molarity of pure water. The molarity of pure water is always 55.555. Pure water is always 55.555. और चाहे कितना भी ग्राम्स हो, चाहे कितना भी ml हो, प्योर वाटर है तो मोलारिटी विल बी 55.555. Okay, molarity of pure water is always 55.555. This is a standard value. यहाँ पे भी लिखा है मैंने शायद, ये रहा देखो, pure water is always 55.55. That's a fixed thing. Solve question number 19 for me. चलो 2 ही क्वेश्चन बचे, क्या बात है. Same as question number 5. Solve question number 19. चलो, I will ask somebody from the group. Let me see who can solve question number 19 for me.
Areva, I can see so many new people who have attended the lecture today, especially the Palghar guys. I'm happy that आप सब उठ गए हो. पालघर के 2-3 बच्चे तो एकदम thank you for सर attending. क्वेश्चन फिर से दिखाओ. Was that? Yes, Janvi. सर क्वेश्चन हाँ. दिखाओ फिर से. अच्छा, तुम्हारे पास नहीं है क्या क्वेश्चन? नहीं, एक मिनट. Which of the following will have the maximum freezing point? This is the question. Sir, option A, urea. Sir, option A. क्यों maximum freezing point के लिए क्या करना है? Lowest Sir, number of lowest number of particles. Exactly. Very good. ठीक है. रख दो, mute कर दो. Question is maximum freezing point, that is the lowest number of particles चाहिए. वापस से देखो, चारों का concentration same है, इसलिए गेम किस पे आ गया? पार्टिकल्स पे आ गया. यूरिया एक ही पार्टिकल देगा, KCl 2 देंगे, BaCl2 3 देगा और NaCl भी 2 देंगे. तो अपना आंसर यूरिया पे आ जाता है बिकॉज वो लोएस्ट नंबर ऑफ पार्टिकल्स देगा, तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ऊपर वाला रहेगा, हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट. द आंसर इज यूरिया, 0.01 मोलार यूरिया. ओके, एंड लास्ट क्वेश्चन. Congratulations. Okay, 6 grams of urea are dissolved in 90 grams of water. What is the relative lowering of vapor pressure? 6 grams of urea dissolved in 90 grams of water. What is the relative lowering of vapor pressure? Okay, please try to solve this. बाद में मैं discuss करता हूँ last में. Who will give me the answer? Let me see. I'll just pick up randomly one person. Scrolling. Omkar from Boisar. Yes, sir. Please give me the answer to question number 20. Yes, sir. Trying. Okay, beta. So, question number 20 goes something like this. Relative lowering of vapor pressure का formula ये रहा. Sir, Delta answer P. is A. Okay, let's try solving this. Thank you, beta. देखते हैं. Relative lowering of vapor pressure, the formula is here. Delta P upon P, which is X2. What is X2? Mole fraction of the solute. So, X2 का formula here है W2 upon M2, M1 W1. We have done this directly from the Raoult's law. तो W2 कितना दिया है? 6 ग्राम. बराबर है. W2 कितना दिया है? 6 ग्राम. M2 कितना है? यूरिया ना, तो 60 grams. Molecular weight M1 of water 18 and weight of the water is 90. तो बस सीधा सीधा substitution. 6 by 60 is 1 by 10 and 18 by 90 is 1 by 5. That's 1 by 50. It's 0.02. That has to be your answer for relative lowering of vapor
pressure. Okay, once again देख लेते हैं, ये रहा पूरा sum. Relative lowering of vapor pressure is given by this formula. Delta P upon P is X2. What is X2? Mole ratio, sorry, mole fraction of the solute. ये रहा formula directly from the Raoult's law. इसमें फर्स्ट मैंने प्यार से सिर्फ सब्स्टिट्यूशन किया है. ओके, W2 का वैल्यू W2 का वैल्यू 6 ग्राम. Molecular weight of the solute is 60. Molecular weight of water is 18. And weight of the water is 90. 6 by 60 is 1 by 10. 18 by 90 is 1 by 5. सब मिला के 1 by 50, which is 0.02. Okay. So this is question number 20. Please note this down. And anyone with any doubts, please ask. 1 to 9 हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं. किसी को 11 से लेके 20 में कुछ डाउट्स है तो प्लीज पूछो. देख लो एक बार, कोई क्वेश्चन नहीं समझा है तो प्लीज आस्क बिटवीन 10 to 20. Anyone, any questions from question number 10 to 20? नो सर. कौन सा? नहीं, एक भी नहीं. एक भी नहीं. अरे वाह, थैंक यू. Anybody else? Question number 10 to 20. Sir, question number 14. 14. मिस्त्री, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? हाँ, देख क्या करना था इसमें. सिर्फ प्यार से पूछा है कि 1 मोलार NaOH का सॉल्यूशन है लेकिन उसका 100 ml ही है अपने पास, पूरा 1 लीटर नहीं है. नाउ आइडियली 1 मोलार क्या होता है? 1 मोलार होता है 1 मोल इन 1000 ml. बट अपने पास कितना है? सिर्फ 100 ml. तो डिवाइड बाय 10 करना पड़ेगा ना. सो टू कीप द रेशियो कॉमन वी शुड हैव 0.1 मोल इन 100 ml. तब जाके वो 1 मोलार कहलाएगा. ओके. उसके बाद बोला है कि उसको डाइल्यूट किया है पानी से टू 1000 ml. तो पानी से डाइल्यूट किया है तो उसका 1000 हो गया, लेकिन अभी भी नंबर ऑफ मोल्स इसका तो सेम ही रहेगा. तो यू नाउ हैव 0.1 मोल इन 1000 ml. Yes, sir. बराबर है. जो पहले 0.1 इन 100 था, फिर पानी डाल के डाइल्यूट किया, बट NaOH तो अभी भी उतना ही है ना बेटा उसमें. हाँ. So that becomes 0.1 in 1000 ml. Okay, sir. Thank you. Okay, yeah. Anybody else? Any other question? क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट बताना सही बात. Sorry? क्वेश्चन नंबर 3. Question number 3. Okay. Question number 3, 1, 3. Sorry, 3, 3, 1, 3 क्या है अर्शी? Okay, question number 3. हाँ, ये रहा. See, weight by volume, 2% H2SO4, weight by volume. Percent means for 100 grams, 100, right?
So in this question, when I say 2% H2SO4, that means I have 2 grams H2SO4 in 100 ml, क्योंकि weight by volume दिया है, तो grams per ml. ओके, तो मेरा डिनोमिनेटर का वॉल्यूम मुझे मालूम है 100 ml है, उतना मेरे को फिक्स है. अभी 100 ml कितना होता है? 0.1 लीटर. तो मेरा डिनोमिनेटर फिक्स हो गया. ओके, नाउ व्हाट आई डिड, मैं नंबर ऑफ मोल्स ढूंढा. नंबर ऑफ मोल्स कैसे ढूंढेंगे? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट करके. द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2SO4 is 98, तो 2/98 कर लिए, तो मोलारिटी मिल गई. मोलारिटी कैसे मिला? मोल्स पर लीटर. तो ये रहा मेरा, देखिए यहाँ पे मैंने मोल्स भी लिखा है ये, और ये मेरा वॉल्यूम भी है. तो मैंने बस मोलारिटी ढूंढ लिया उसकी मदद से, मोल्स पर लीटर करके. लेकिन क्वेश्चन में मोलारिटी नहीं पूछा है, क्वेश्चन में नॉर्मेलिटी पूछा है. और नॉर्मेलिटी मोलारिटी का रिलेशनशिप ये रहा, नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू मोलारिटी मल्टीप्लाइड बाय, ये लिख ले चाहिए तो, नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू मोलारिटी मल्टीप्लाइड बाय, ब्रैकेट डालो, H प्लस और OH माइनस और ऑक्सीडेशन स्टेट और वैलेंसी. क्योंकि ये एसिड है तो इसका H प्लस देखा जाएगा. H2SO4 2 H प्लस देता है, इसलिए मैंने मल्टीप्लाई बाय 2 किया है. ओके, मोलारिटी ऊपर बैठा है 20/98 और उसको मैंने मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया. So what do I get is 20/49, which is 0.4. Okay, sir. Thank you. Sir, question number 8. 8. Okay. हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या पूछा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट. मतलब अपने को -4 से -3 से -2 से -1 ऐसे जाना है. तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इज डिक्रीजिंग नंबर ऑफ पार्टिकल्स, -4 to 3 to 2 to 1. सो इन मेरा ऑप्शन ए ही मैंने देख लिया. मैंने बोला भी था उसमें एक हल्का सा करेक्शन है, मैंने मिस्टेक की है कि यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन मुझे 3 + 2 5 पार्टिकल्स देता है. ओके, फिर उसमें सेकेंड में 3 पार्टिकल्स है और फिर 2 पार्टिकल्स है, तो हो गया ना मेरा काम. डिक्रीजिंग नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज व्हाट आई वांटेड. So I'm getting na 5, 3 to 2. So 5 will give me the lowest freezing point, then 3 and then 2, and that is exactly as per my increasing order of freezing point. धीरे से छोटे से लेके बड़े वैल्यू पे आ रहा हूँ, -5 to -3 to -2. So that is my answer for increasing order of freezing point is decreasing number of particles. तो 5 से 3 से 2. Thank you, sir. Okay, yeah. Anyone with any other questions? ठीक है, so I think we'll stop here. In case if you have any doubts, you can get back to me. इतने 4 लेक्चर हो गए, बट किसी ने भी मुझे I think फर्स्ट लेक्चर के बाद किसी ने भी कोई डाउट नहीं पूछा है. तो या तो तुम बहुत ज्यादा ही स्कॉलर हो या तो तुम पढ़ ही नहीं रहे हो, दो में से. आई थिंक ऑप्शन 2 इज करेक्ट. बट फिर भी अगर आपको डाउट्स है तो प्लीज आप शेयर कर सकते हैं with any chapter. All right, we can stop here for today then. Thank you guys. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Bye guys. Thank you. Thank you.